Hello guys, welcome to today's video. As you can see by the title itself, it's a very sensitive video for all SMEs. Assam every year gets devastated by this natural calamity of floods and flash floods. So today in this video, we'll try to clear some perspectives on what is flood, Kenake Hoy, how does this flood happen? What are the reasons? And how probably can we see? Of course, the normal things you already people from Assam are already much aware of the thing. But from civil service perspective, we'll try to see certain things which becomes very instrumental in writing those answers that you seek for. But before starting off, I would just like to show you some visuals, some pictures which can sensitize this topic and basically make you aware that what situation and the people of Assam are forced to live in each year in this monsoon season. The first picture here, as you can see in the slide, the first picture shows how the effect of flood has not only devastated natural and human beings, but also physical properties like railway lines, like roads, like all those infrastructural needs that any city runs on. In this first picture, you can see how an entire train has been washed away by the rain. The tracks are not even visible, right? In the second picture, you can see a person basically trying to cross a railway track, but the land below it is being washed away. The land below this railway track is going and eroded by the flow of the river. Some better picture to understand what is happening beneath this railway track is this picture, the fourth picture, if you can see here, how this track was actually covered by land all throughout, but you can see this entire piece of land is nowhere to be seen and been flooded by the rivers Brahmaputra. Again, this another picture sensitizes that how our core infrastructural needs to be better equipped to deal such a situation of flood. The next picture that I would like to show you is the picture of Silchar. This is a picture of Silchar, guys. People from Silchar would know about it. Now this is a bullseye view from bird's eye view of the entire city, how it has been washed away by the entire city has been under submerged under water. I have students from Silchar who are telling me that around 9 days they have been out of electricity together. No electricity, no food disposals, no proper living conditions. There is water even in the first floor of certain buildings. Can you imagine? The ground floor तो पूरा का पूरा पानी से भर ही गया है, but first floor में भी हमें पानी घुसते हुए देखने को मिला है. You might have also seen many of such videos and social media, um, like all those videos that comes up in various portals of social media. So ये तो था शुरुआत की हो क्या रहा है, but let us try to see कि ये हो क्यों रहा है. वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस. We have to understand कि ये हो क्यों रहा है. If we understand हो क्यों रहा है, then we can solve the problems in the particular city and a particular state. The first fact that you should know that death toll has now, like as on date, whenever I'm shooting this video, as on date is around 179 और करीब करीब 180 के करीब आप मान के चल सकते हो. ठीक है, इवन तो 25 लाख से भी ज्यादा लोगों का इफेक्ट हुआ है. What does effect mean? Effect means that these people have lost their homes, these people have lost some family member, these people have lost their source of livelihood. ठीक है, तो these are some of the affected parameters. But total death toll, मैंने I have got to know that people dead bodies को भी बड़ी करने के लिए जमीन नहीं मिल रहा है because all the burial grounds are also submerged under water. Can you imagine? ठीक है, तो इसका रीजन क्या है गाइस? दैट असम इज अ वेरी वेटी एरिया, मींस वेटलैंड्स बहुत ज्यादा है असम में. मैं आपको इन द फर्दर स्लाइड समझाऊंगा कि वेटलैंड होना तो अच्छी बात है, बट इफ वेटलैंड्स आर नॉट मैनेज प्रॉपर्ली व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस. तो सबसे पहला फैक्ट, 3000 से भी ज्यादा वेटलैंड्स हमारे असम में है एंड जिसके कारण 40% से भी ज्यादा स्टेट हमारा फ्लड प्रोन हो जाता है. व्हाट इज फ्लड प्रोन?
Flood prone means उन areas में they are very at high propensity to getting flooded by the river water. अगर आप गवर्नमेंट डेटा एनालाइज करेंगे तो 8,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हैज इरोडेड एवरी ईयर. लाइक हर साल आप जानते हो मॉनसून सीजन में हम लोग का फ्लड होता है. तो इस फ्लड के कारण करीब करीब 8,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड मास को मतलब पानी बह के ले जाती है, बेसिकली बहा ले जाती है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन लाइक एवरी ईयर ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. अगर आप पूरा का पूरा डेटा सिंस 1950 एनालाइज करेंगे गाइस, तो 8% से भी ज्यादा हम लोग का लैंड मास. ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा व्हाट इज द टोटल स्क्वायर किलोमीटर लैंड मास दैट वी हैव इन असम, एंड उसका 8% आप कैलकुलेट करिएगा एंड बताइएगा मेरे को कि 8% ऑफ टोटल लैंड मास कितना होता है. ठीक है, तो 8% ऑफ टोटल लैंड मास मतलब असम, अगर ये है असम, जस्ट अ सेकंड मैं आपको विजुअली समझा देता हूँ हो क्या रहा है. तो इफ दिस इज असम, लेट्स से कि ये हम लोग का नो इफ दिस इज असम, इफ दिस इज असम, उसका 8%, इफ दिस इज 100%, इफ दिस इज 100%, इसका 8% आप मान के चलिए कि इतना करीब करीब, मतलब ऑफ कोर्स सेम एरिया से नहीं है, बट लेट्स इमेजिन कि इतना सा एरिया ये बहा के ले गया है. कौन? नदी. नदियों ने बहा के ऑलरेडी लेके चली गई है. अर्थक्वेक्स आर आल्सो वन ऑफ द रीजंस गाइस. अर्थक्वेक से क्या होता है? आप पूछोगे सर अर्थक्वेक और फ्लड का क्या रिलेशन है? अर्थक्वेक इज रिलेटेड टू फ्लड बिकॉज earthquake, what does they do? It launches certain p waves and s waves. You have studied. तो p wave and s wave लॉन्च होने के कारण क्या करता है? जमीन हिलती है. तो जमीन अगर हिलेगी तो इट बिकम्स मतलब सॉफ्ट. ठीक है, उसका नीचे का जमीन कभी कभी मतलब इट बिकम्स वेरी प्रोन टू बीइंग वॉश्ड अवे बाय द वाटर. अगर एक ऐसा रीजन के साथ आप असम की जमीन को कंपेयर करेंगे तो असम की जमीन सॉफ्ट है बिकॉज वो हिलती रहती है बहुत ज्यादा. ठीक है, so that is another reason, and it has been predicted. It is not to scare you, but yeah, it's a fact that climate change has to result in more severe floods in coming years guys. 2030-40 में हम लोग को ऐसा प्रेडिक्शन मिला है कि क्लाइमेट चेंज ज्यादा हो रहा है. क्लाइमेट चेंज से क्या रिलेशन? आप पूछोगे सर हाउ क्लाइमेट चेंज इज रिलेटेड टू फ्लड्स. देखो क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है? ग्लेशियल मेल्टडाउन्स, ग्लेशियल मेल्टिंग, ग्लेशियल मेल्टिंग हो रहा है. ग्लेशियल मेल्टिंग होगा तो क्या होगा? ब्रह्मपुत्र का रिवर मतलब जो सी लेवल राइज होगा, सी लेवल राइज, सी लेवल राइज होगा तो पानी ब्रह्मपुत्र में भी आएगी. ब्रह्मपुत्र, अब ब्रह्मपुत्र में अगर पानी आएगी, the level of water goes up in Brahmaputra, then definitely the floods will increase in Assam and as well as the other flood prone regions of India, right? So these are some of the things. अगर हम अभी से कस के कमर नहीं बांधेंगे तो काफी बुरी दिन आने की आशंका है. तो देखते हैं, चलिए these are the facts. अब देखते हैं कि इसको टैकल कैसे करा जा सकता है. How can we basically solve this particular issue? सबसे बड़ा रीजन है गाइस वेटलैंड एंक्रोचमेंट्स. ठीक है, अब वेटलैंड क्या होता है? यू नो दीपोर बिल, राइट? नाउ दीपोर बिल इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वेटलैंड. तो क्या होता है? नदी का पानी होता है गाइस, ठीक है, और पास पास में ऐसे वेटलैंड्स होती है. तो जब भी नदी का पानी मतलब बाहर फ्लो हो जाता है ना, व्हेन लेट्स से देयर इज लॉट ऑफ रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल ज्यादा हो रहा है, तो नदी की पानियों में क्या होगा? बेसिकली नदियों का पानी राइज होगा, और ये राइज होके ये पानी कहाँ जाता है? वेटलैंड्स में फिल हो जाता है, व्हिच आर नेचुरल रिजर्वॉयर्स. ठीक है, वेटलैंड्स एक्ट्स एज अ नेचुरल रिजर्वॉयर. रिजर्वॉयर मतलब जहां पे पानी स्टोर होती है, राइट? तो अगर हम लोग वेटलैंड ज्यादा से ज्यादा रखेंगे तो इट्स अ गुड थिंग कि वो कैप्चर कर लेगी एंड वो लोगों के घरों में नहीं जाएगी. जैसे यहाँ पे पास में एक घर है, तो इस घर में ये पानी नहीं घुसेगा बिकॉज वेटलैंड इज ए लो लाइंग एरिया, तो ये पानी बाहर जाके वेटलैंड में सेटल हो जाता है गाइस. बट हो क्या रहा है? यू गो टू दीपुर बील और एनी अदर वेटलैंड, ठीक है, असम में लॉट ऑफ वेटलैंड्स आर देयर, एंक्रोचमेंट हो रही है, लैंड एंक्रोचमेंट हो रही है, वहां पे हम कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, हम लोग वहां बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं? वी आर डिस्पोजिंग गार्बेज आउट देयर. ठीक है, हम लोग इज्जत नहीं करते हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की. तो क्या हो रहा है कि वेटलैंड फिल्ड अप हो रहा है. द वेटलैंड इज गेटिंग फिल्ड अप विद लैंड. तो अगर वेटलैंड लैंड के मतलब फिल्ड अप हो रहा है तो वेयर विल दिस एक्स्ट्रा वाटर नाउ फ्लो इनटू? It flows into the houses of the people. It flows into the railway tracks. It flows into the roads. It gets accumulated in the areas which it should not be accumulated in.
ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अनदर रीजन इज गाइस द फ्लो ऑफ ब्रह्मपुत्र, द ज्योग्राफी ऑफ असम। ठीक है, मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि ज्योग्राफी को बहुत आपको स्ट्रांग करना है सिविल सर्विस पर्सपेक्टिव में। ज्योग्राफी ऑफ असम सेज कि ये जो ब्रह्मपुत्र है, आप यू नो दैट सैंगपो, तिब्बत, इसमें तिब्बत में इसको सैंगपो बोलते हैं। ठीक है, तो तिब्बत की ग्लेशियर से ये फ्लो होता है। तो तिब्बत का अगर आप एवरेज हाइट देखेंगे गाइस, तिब्बत इज इन ऑलमोस्ट इन हिमालयन प्लेन। ठीक है, तो 5000 मीटर का हाइट होता है। ठीक है, तो 5000 मीटर से आके ब्रह्मपुत्र असम में आता है। दिस इफ दिस इज तिब्बत, नाउ दिस इज असम। तो इसका हाइट होता है 5000 मीटर। एंड दिस इज नाउ असम इज लो लाइंग एरिया, यू नो दैट असम इज मोस्टली प्लेन एरिया। ठीक है, आप बोलोगे माउंटेन्स है, माउंटेन्स है, बट अगर ब्रह्मपुत्र का आप फ्लो देखेंगे तो इट फ्लोज थ्रू द प्लेन्स। तो ये 5000 से अगर आप एक नदी को अचानक 100 मीटर में आप ड्रॉप कर देंगे, तो जस्ट इमेजिन द फ्लो ऑफ द करंट, कितना जोर का करंट फ्लो होगा। ठीक है, उस जोड़ के करंट को फ्लो होने के कारण क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज दैट अंडरलाइंग जो लैंड होता है गाइस, लेट्स से दिस इज द फ्लो, दिस इज द वाटर, तो ये जो जमीन है ना, ये कट जाती है गाइस, इसमें कट्स हो जाती है। ठीक है, आप देखिएगा, पानी पानी हैज अ प्रेशर, पानी का एक प्रेशर होता है। ठीक है, जोड़ों से आपके शरीर में भी अगर पानी में ऐसा फ्लो कराऊंगा तो आपको दर्द होगा। तो जमीन तो फिर भी, मतलब समझ रहे हो, जमीन कट के अंदर चली जाती है एंड लैंड गेट्स इरोडेड। ठीक है, लैंड गेट्स इरोडेड एंड ये जमीन को ऐसे काटते हुई चली जा रही है ब्रह्मपुत्र ऑल अलोंग द असम। ठीक है, अनदर बिग रीजन बिकॉज ऑफ द हाइट दैट इट फ्लोज फ्रॉम। समझ में आया? नेक्स्ट इज डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन अगेन एड्स ऑन टू दिस बर्डन। डिफोरेस्टेशन क्या करता है, इट लूजन्स ऑफ द सॉइल, लूजन्स ऑफ द सॉइल। आप बोलोगे सर कैसे, डिफोरेस्टेशन कैसे लूज करता है? देखो गाइस, पेड़ होता है, अब पेड़ का पता है, यू हैव, मतलब अंडर बीनीथ द यू नो ग्राउंड पेड़ों का रूट्स होती है। तो ऑल दिस रूट्स व्हाट दे डू इज दे होल्ड एंड ग्रिप द लैंड वेरी स्ट्रांगली, पकड़ते रहता है। मतलब अब पेड़ आप काट दिए तो रूट्स भी मर जाएंगे। तो वंस द रूट इज नॉट देयर, तो द लैंड इज नाउ मतलब वेरी लूज, एंड पानी अगर बहेगा तो वो वॉश अवे करके लेके चला जाने का मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जस्ट इमेजिन अगर आप मेरा हाथ पकड़े हुए हो एंड मेरा हाथ छोड़े हुए हो, तो पकड़े होने के कारण इट हैज अ मोर ग्रिप, तो उसको वॉश अवे कर लेना आसान नहीं होता है। तो डिफोरेस्टेशन। एंड लास्ट जो सबसे कॉमन चीज है, गार्बेज डिस्पोजल, ऑल ऑफ यू नो इट। क्या करता है ये सारा का सारा, यू नो, ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। दिस मतलब irregular garbage disposal does what, it blocks the drainage outlets, and इसके वजह से सारा का सारा, you know if you in गुवाहाटी, you know, अनिल नगर, राजगर, ठीक है, मिलन नगर, ये सब एरियाज में बहुत ज्यादा आपका एक्यूमुलेशन हो जाता है। अगर आपको रीजंस पता चल गया गाइस, ठीक है, इफ यू नो द रीजंस, यू नो द सॉल्यूशंस एज वेल। ठीक है, सबसे बड़ा सॉल्यूशन, अगर आपको सॉल्यूशन का बात करना है, सबसे बड़ा सॉल्यूशन एफोरेस्टेशन। ठीक है, डिफोरेस्टेशन का ठीक उल्टा, अगर आप बोलेंगे ये डिफोरेस्टेशन, कैन यू सी हाउ इन लार्ज नंबर्स डिफोरेस्टेशन इज हैपनिंग। ठीक है, ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे तो एफोरेस्टेशन हो जाएगा। एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन, आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाइए गाइस। फ्लड प्रोन एरियाज में यू शुड ग्रो मोर ट्रीज। क्या होगा, जमीन को पकड़े रहेगा, पकड़ा रहेगा तो फिर जमीन मतलब बह जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कभी नहीं होगा, बट हाँ, you can decrease the chance of getting erosion। ठीक है, अनादर आप मगर मतलब if you see the real time scenario, अगर फिजिकली हम लोग क्या कर सकते हैं इज एम्बैकमेंट बिल्डिंग अप गाइस। ये डायग्राम देखिए आप, इसके द्वारा आपको बहुत सारा क्लियरिटी मिलेगा। ये है आपका रिवर, लेट्स से दिस इज द ब्रह्मपुत्र, द माइटी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र क्या होता है कि लेट्स, दिस इज आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर क्रिएटेड, हाँ, दिस इज आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर। जस्ट इमेजिन ये नहीं था। ठीक है, जस्ट इमेजिन, मैं इसके बिना आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लेट्स इमेजिन दिस इज अ फ्लैट लैंड एंड ये आपका ब्रह्मपुत्र है। तो इसमें अब क्या होगा, ये नहीं है, दिस इज नोन एज एम्बैकमेंट। ठीक है, दिस इज द एम्बैकमेंट सिस्टम दैट हैज बीन आर्टिफिशियली क्रिएटेड। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो लेट्स से अगर वाटर लेवल राइज होती तो सारा पानी कहाँ चला जाता, यहाँ पे घरे होंगे, लेट्स से यहाँ पे घर है तो ये घर में घुसेगा। ठीक है, डायरेक्ट घर में घुसेगा, है कि नहीं? बट ये एम्बैकमेंट सिस्टम के कारण क्या होता है, कैन यू सी, अगर यहाँ पे सी लेवल राइज भी होता है गाइस, तो इस लेवल तक, ऑलमोस्ट इस लेवल तक ये पानी यहीं पे रह जाएगा। यहाँ पे अगर दूर दूर में घर भी है पास में, तो उस घर में पानी नहीं आएगा, इवन टू द लेवल ऑफ
वाटर इज ऑलमोस्ट एज इट्स टिल द रूफ ऑफ दिस हाउस, बट ये एम्बैंकमेंट ने क्या करा है, पानी को ब्लॉक करके रखा हुआ है। ठीक है, ये प्रॉपर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है, सिविल इंजीनियर्स वुड नो कैसे बनाते हैं एम्बैंकमेंट्स को। ठीक है, बट रियलिटी इज कि इसमें एक और मसला है। ठीक है, आपको मैं सच्चाई बताता हूँ कि जो एम्बैंकमेंट्स है असम में, ये सारे कच्चा एम्बैंकमेंट बनाते हैं। ठीक है, सरकार पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट क्या करती है, कच्चा एम्बैंकमेंट बनाती है, डिड नॉट बिल्ड इट आउट ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट होने से क्या होता है, ज्यादा फर्म होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा रिजिड होता है। बट ये जो you might have seen in the news also, embankments are also getting washed away, so that is the biggest मतलब irony in the planet कि जो चीज फ्लड को रोकने के लिए है, फ्लड उसी को उड़ा के लेके जा रही है। ठीक है, तो we have to be very practical on building the constructions that we are doing। कंक्रीट के बनाएंगे, ठीक है, ईटा बाली सीमेंट अगर ये सब मिला के बनाओगे तो कैसे वॉश अवे होगा, राइट। सो ये एक सोल्यूशन हो गया। दूसरा सोल्यूशन, ड्रेनेज मेंटेनेंस। ड्रेनेज मेंटेनेंस करिए आप, डू नॉट डिस्पोज द गार्बेज नियर बाय इन योर नियर बाय ड्रेन्स। करते हैं हम लोग, ठीक है, यू वुड एग्री। आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स को बनाइए, वेटलैंड्स, क्योंकि देखिए वेटलैंड्स तो हम लोग एंक्रोच कर दिए, वेटलैंड्स को हमने, नेचुरल रिजर्वॉयर जो होता है वेटलैंड को एंक्रोच कर दिया हमने, तो अब आर्टिफिशियली बनाइए। ठीक है, कैन यू सी हाउ आवर एक्टिविटीज आर मतलब बीइंग अ बर्डन ऑन आवरसेल्व्स। अभी पैसा खर्च करो, फिर से आर्टिफिशियली एक वेटलैंड बनाओ, तो उससे अच्छा वेटलैंड ही बचा लेते पहले। खैर वो तो हो गया, अब वेटलैंड बनाना पड़ेगा। एम्बैंकमेंट, ये मैंने बताया। रिमूव रिवर बेड गार्बेज। क्या हो गया है गाइस, लॉट ऑफ अस ভৰলু নদীটো যাও, ভৰলু নদী, ঠিক আছে, তাতে আমি ডাইরেক্ট গার্বেজৰ টোপোলাবিলাক ডাইরেক্ট নদীত পেলাই দিওঁ আমি। ठीक है, ब्रह्मपुत्र इज गेटिंग फुल ऑफ गार्बेजेस बेड में, मतलब इन द रिवर बेड, मतलब जो फ्लोर होता है रिवर का, उसमें आपको ढेर सारे गार्बेज के, मतलब यू नो ऑल दोस पैकेट्स एंड प्लास्टिक्स यू विल गेट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव दैट। उससे क्या होगा, नंबर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर विल इंक्रीज। अब गार्बेज जगह खा रही है, उसकी वजह से यू नो आर्टिफिशियली सी लेवल राइज हो रहा है, वाटर लेवल राइज हो रहा है। अगर वो गार्बेज के पैकेज हम लोग साफ कर देंगे तो the amount of volume can be controlled। ठीक है, these are some of the solutions that I feel can be the most suitable and you know मतलब conclusive solutions। मैं दोबारा से दिखाना चाहता हूँ आपको पिक्चर। ठीक है, आई होप ऐसा किसी का दिन में, किसी की जिंदगी में ऐसा दिन कभी नहीं आया। और ठीक है, आई होप दिस सॉल्यूशंस विल बी यूजफुल सम वे और द सम वे और द अदर वे। ठीक है, एंड stay safe to all the people from Assam। take care, hope this was useful and I'll see you in the next video। bye bye। বৰঠাকুৰ IAS একাডেমি, প্ৰস্তুতি আৰু অধ্যয়নৰ নিৰ্ভৰযোগ্য ঠিকনা। বৰঠাকুৰ IAS একাডেমি।